Hello students, we'll start next exercise today, which is based on formula to calculate nth term of an arithmetic progression. So let's recall first the formula to calculate nth term of an arithmetic progression. General form of an arithmetic progression is a plus d, a plus 2d, a plus 3d. Okay, where a is first term and d is the common difference, the difference between any two consecutive terms. So nth term of an AP is given by a plus n minus 1 into d. It is also known as last term of an AP. So we can represent nth term of an AP by an or L. In this formula we have four variables a, an, n and d. Out of these four variables, three values will be given in the question, and we'll use those values to find the magnitude of missing value. In some questions we need to find an, sometime we need to find a, n or d, but every time three values will be given. So here we have a as first term, d is common difference, whose formula is second term minus first term, and an is last term, n is the number of term. Now let's start exercise 5.2. So in first question we need to fill in the blank space in the following table, where out of these four, three values are given and we need to find the missing value. So in first part we have a 7, d is 3, n is 8, and we need to find an. So we'll use formula to calculate nth term of an AP, which is an equals to a plus n minus 1 into d. So we need to find an. A is 7, n is 8, and d is 3. Now 8 minus 1 is 7, multiplied by 3. So now we have 7 plus 7 3 are 21, which is 28. So nth term means 8th term of this AP will be 28. Now in second part, a, d, a, n and a n are given and we need to find d, missing value. Okay, so here a n is 0, n is 10, a is minus 18, and we need to find d. So we'll apply the same formula. A n is equals to a plus n minus 1 into d. तो इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो. तो ए एन तो बच्चों यहाँ पर 0 है, ए इज़ माइनस 18, एन इज़ 10 एंड डी तो हमें फाइंड करना है. तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले माइनस 18 उधर जाएगा और उधर जाके हो जाएगा प्लस 18. 10 माइनस 1 हो गया 9, 0 प्लस 18 हो गया 18, 9 उधर जाके 18 को डिवाइड करेगा तो डी हो गया 2. ठीक है, तो केवल एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने हैं. नाउ इन थर्ड पार्ट we need to find a. d is minus 3, n is 18, and an is minus 5. So an is given by a plus n minus 1 into d. So an is minus 5, a हमें find करना है, n is 18 and d is minus 3. So minus 5 equals to a plus 18 minus 1 is 17. प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, माइनस 51 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 51 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए. सो ए इज़ 46. ठीक है, तो 46 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. हियर ए एन is a plus n minus 1 into d. an is 3.6,
ए इज़ -18.9, एन हमें फाइंड करना है, एंड डी इज़ 2.5। अब हम -18.9 को पहले उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन हो जाएगा प्लस का, अब हमें एन फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो ब्रैकेट के बाहर है इसको उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इन दोनों के डेसिमल हटाए, इससे कैंसिल हो गया 9 टाइम। अब ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किसको उधर लेके जाना है। सबसे पहले प्लस वाला जाता है, फिर ब्रैकेट के बाहर है वो जाता है, फिर उसके बाद जो फाइनली ब्रैकेट खुलता है तो वहाँ पे जो वेरिएबल के साथ है उसको दूसरी साइड लेके जाना है। ठीक है, नाउ इन फिफ्थ पार्ट वी नीड टू फाइंड nth term of the AP. So an is given by a plus n minus 1 into d. A is 3.5, n is 105, minus 1 into d is 0. Now 105 minus 1 is 104, multiply by 0. So 104 into 0 is 0, so 3.5. तो जब डी 0 होगा तो जो ए है वही ए एन होता है, क्योंकि 0 प्लस करते जाओगे तो 3.5 ही बार बार रिपीट होगा। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन वी नीड टू चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में केवल ए की फॉर्मूला है, वो है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें कि वो कुछ और पूछ सके, क्योंकि फॉर्मूला एक ही है इसमें अभी तक। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो इसमें हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। बस जो वैल्यू पूछी गई है वो हमें फाइंड करना है। लेकिन अब क्योंकि एक ही क्वेश्चन है उसके पास पहुंचने के लिए, तो वो क्या कर रहा है कि वो आपको अलग अलग ढंग से एक ही बात को कहेगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में उसने कुछ कहा नहीं, बस कहा मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लो। इसमें उसने कह दिया कि 30th टर्म फाइंड कर लो, तो बात वही है, उसने कहा है कि इस एपी की 30th टर्म फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पर एपी है 10, 7, 4, ये तो होगी एपी, और कह रहा है इसकी 30th टर्म फाइंड कर लो। तो यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज 10, डी होती है कॉमन डिफरेंस, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो इट इज -3, एन है नंबर ऑफ टर्म दैट इज 30, और उसने पूछी है हमें 30th टर्म, यानी ए एन पूछ रहा है वो। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे एन 30 है तो ए 30 हो जाएगा। ए 10 है प्लस एन 30 है -1 इंटू डी -3, 30 माइनस 1 इज 29 इंटू -3, so 29 इंटू -3 -87, that is -77. तो A30 is -77। ठीक है, वही सब कुछ करना है बार बार। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो सीरीज़ है -3 -½ 2, और इसकी हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th। ठीक है, तो यहाँ पे ए तो है फर्स्ट टर्म दैट इज -3, डी है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए है डी है, और एन पूछ रहा है 11 टर्म पूछ रहा है ना, 11 टर्म यानी एन है 11। तो बस अब लगा देते हैं फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पर, ए है -3, एन है 11, डी है 5/2, सो -3 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल,
Now -3 plus 5 5 जा 25, 25 minus 3 is 22. इसका मतलब इसकी 11 टर्म 22 होगी. Now in third question हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है जो बॉक्सेस में है. ठीक है, तो ये एक एपी है, उसने कहा इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म. तो हम एक एपी की फर्स्ट टर्म देख रहे हैं 2 है और थर्ड टर्म 26 है और बीच वाली टर्म पूछ रहा है वो कि बताओ क्या होगी. ठीक है, तो देखो ये तो पहली टर्म है विच इज़ ए, ये है थर्ड टर्म. ठीक है, थर्ड टर्म, पहली टर्म होती है ए, दूसरी ए प्लस डी, तीसरी होती है ए प्लस 2d. तो ये थर्ड टर्म है, तो दिस इज ए प्लस 2d. सो ए प्लस 2d इज 26. ठीक है, जो भी यहाँ 3 होता है, जो भी नंबर यहाँ उससे एक लेस यहाँ होना चाहिए बस. तो अगर ए 10 निकालना होगा तो क्या होगा ए प्लस 90, ए 15 निकालना होगा तो क्या होगा ए प्लस 14d. ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया ए 3 को ए प्लस 2d और ए की वैल्यू यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गई है और एक वेरिएबल हमारे पास है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d. सो 2d इज इक्वल टू 26 और प्लस 2 को अगर हम उधर लिख के जाएँ तो ये हो जाएगा -2. सो 2d इज इक्वल टू 24 and d equals to 24/2. so d is 12. ठीक है, तो d आ गया. अब वो कह रहा है मिसिंग वैल्यू फाइंड करो बॉक्स में. तो बॉक्स तो सेकंड टर्म की जगह है, तो इसका मतलब हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, यानी दैट इज a2. तो a2 क्या होगा बच्चों, a प्लस डी. a3 होता है a प्लस 2d, a2 होगा a प्लस डी. तो a कितना है, a इज़ 2 एंड d इज़ 12. तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14. तो A2 आ गया 14. तो ये बॉक्सेस वाले जो क्वेश्चन होंगे इनमें क्या होगा कि जो मिसिंग वैल्यूज होंगी उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होंगी और उन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे किसी मेथड से और मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान से देखो कि जब ये 2 टर्म होती हैं, इसको करने का एक और मेथड है, ये 2 है और ये 26 है. तो ध्यान रखो जब 3 टर्म्स AP में होती हैं तो जो बीच वाली टर्म होती है उसको हम एक्सट्रीम टर्म का मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन. और उसका फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन अगर निकालना हो हमें, 2 नंबर हैं A और B और उनका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B/2. ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन अगर 3 टर्म्स AP में है तो बीच वाली टर्म हमेशा एक्सट्रीम टर्म की अर्थमेटिक मीन होगी. उसको फाइंड करने के लिए हम एक्सट्रीम टर्म को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो ऐसा ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 + 26/2, सो 28/2, सो 14. ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू हमें 14 मिल गई. तो दिस इज़ डायरेक्ट मेथड, लेकिन ये तभी लग पाएगा जब मिडिल वैल्यू निकालनी हो. ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. नाउ इन सेकंड पार्ट, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर गिवन एंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आर मिसिंग. सो दिस इज सेकंड टर्म विच इज़ A2 और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस डी. सो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ टर्म which is A4, that is 3, and A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A plus 3D. So this is the second equation. Now we have 2 equations in 2 variables. We can use elimination method to find the values of A and D. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि coefficients of A are already same, so we just need to subtract these 2 equations. So equation 1 में से हम equation 2 को subtract कर देते हैं. A plus D is 13, A plus 3D is 3. सब्ट्रैक्ट करते समय नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, A कैंसिल हो गया एंड D minus 3D is -2D. 13 minus 3 is 10. So D is 10/-2. So D is
5। अब d जब आ गया है तो d को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ a। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी इज़ 13। ये जो d की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर हम करें तो a प्लस -5 इज इक्वल्स टू 13, और ये -5 को उधर लेके चलेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास a आ गया 18। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमें यही करना है बॉक्सेस वाले में कि लीनियर इक्वेशन बनेगी दो, उनसे a और d निकालो, उसके बाद मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर लो। तो मिसिंग टर्म है एक तो a यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म तो होती है a ही होती है, वो तो दे दिया उसने, हमारे पास आ गया है 18। अब फाइंड करनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म होती है a3 जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, और a है 18 और d हमने फाइंड किया है वो है -5। तो d की वैल्यू -5 रख दी हमने। 18 माइनस 10 दैट इज़ 8। तो ये आ गई बच्चों मिसिंग टर्म्स। तो बॉक्स में लिख देंगे 18 और थर्ड प्लेस पे लिख देंगे 8। So these questions are very easy. This exercise is very easy and this chapter is also very easy. Now in third part, first term is 5 and fourth term is 9.5 and we need to find second and third term. तो फर्स्ट टर्म तो a होता है, लेकिन a4 यानी फोर्थ टर्म होगी a प्लस 3d दैट इज 19/2। ये वैल्यू यहाँ रख दो। +5 को उधर लेके चलेंगे, एलसीएम लेंगे। सो 3d इज इक्वल्स टू 9/2। ये 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा, सो d आ गया 3/2। a भी आ गया, d भी आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म है a प्लस डी। a की वैल्यू रख दी 5, d की वैल्यू 3/2। तो ये हो गया, एलसीएम लिया 2 5 जा 10 प्लस 3, तो ये हो गया 13/2। तो सेकंड टर्म तो आ गई 13/2। अब थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। a कितना है 5, d इज 3/2। 2 से 2 कैंसिल्स, 3 1 जा 3, सो 5 प्लस 3 इज 8। ठीक है, तो एक जैसे ही क्वेश्चन है। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म इज गिवन दैट इज a, second, third, fourth, fifth terms are not given, and sixth term is 6। सिक्स टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 5d। ये जो a की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, -4 + 5d इक्वल्स टू 6, 5d इक्वल्स टू 6, और ये -4 उधर जाएगा तो +4, 5d इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 10/5, so d equals to 2। so now we have a and d। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a है -4 और d है 2, तो ये आया -2। देन थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a इज -4, d इज 2, so -4 + 2 2 जा 4, दैट इज 0। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, वैल्यू रखते चलेंगे, 6 - 4 इज 2। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d, d इज 2। d है यहाँ पर, 3 पहले आएगा।
ठीक है, आंसर तो वही आना है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं मिसिंग टर्म्स को। नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड टर्म इज 38, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। A2 इज 38, तो A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस डी। तो ये पहली इक्वेशन। और A6 इज -22, सो A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। ये अपनी सेकंड टर्म हो गई। ठीक है, अब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के किसी मेथड से सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। तो एलिमिनेशन मेथड इज़ क्वाइट इजी। तो उसके लिए हमें देखना है कि कौन सी दो टर्म्स हैं जिनके कोएफिशिएंट अगर सेम है तो वी नीड टू सबट्रैक्ट देम। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करते हैं। माइनस किया, A कैंसिल, प्लस 1D और माइनस 5D को सॉल्व किया तो माइनस 4D, 38 प्लस 22 इज 60, so D is 60 upon minus 4, that is minus 15. Now we have D, so we can substitute this value of D in first equation. A प्लस D की जगह रख दिया -15 इक्वल्स टू 38। -15 को उधर लेके चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो A आ गया 53 और D इज़ -15। नाउ वी हैव A एंड D। तो अब हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज़ A एंड A इज़ 53, तो फर्स्ट टर्म तो 53 होगी। अब थर्ड टर्म A plus 2D fourth term A plus 3D बहुत बोरिंग है बच्चों ये सब कुछ बार बार एक जैसा। A फिफ्थ A plus 4D, A is 53, 4D is -15, तो -7। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, और अभी तो बहुत सारे हैं इस एक्सरसाइज में। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि विच टर्म इज 78। ठीक है, क्वेश्चन फिर से चेंज किया उसने, सीरीज दे दी है हमें, और कहा है कि विच टर्म, यानी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और कह रहा कौन सी है, यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो जब भी कहे विच टर्म तो समझ जाना n पूछा है, और ये जो गिवन है वो एक nth टर्म है, तो वो an है। और a हमें दिख ही रहा है 3 है, और d सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं, तो d हो गया 5। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया, a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है और n पूछा है। तो हम मान लेते हैं दिस इज nth टर्म। उसने कहा ना कौन सी टर्म है, हमने माना nth टर्म है, तो फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगा के इसके इक्वल कर देते हैं, उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। n इज 16। ठीक है, इसका मतलब ये इसकी 16 टर्म है। तो उसने कहा विच टर्म, तो विच टर्म्स हम समझ गए भाई ये एक टर्म है 78, तो उसको हमने मान लिया nth टर्म, और ये सीरीज़ दे रखी थी तो हमने देख लिया फर्स्ट टर्म a यानी 3 है, d निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, और उसने विच टर्म पूछा यानी n पूछ रहा है, तो हमने an 78 लिख के फॉर्मूला लगाया, और फिर वही जो सारी वैल्यूज पुट कर दी, एक इक्वेशन बनी,
पहले +3 को उधर लेके गए तो माइनस हुआ, फिर इंटू 5 को उधर लेके गए तो डिवाइड हुआ, फिर -1 को उधर लेके गए तो प्लस हुआ, और फाइनली n बचा तो वो था 16।